Hello everyone, welcome back to the Hindi word. Today we will take one simple English word and create sentences at three levels: simple, medium, and advanced. So let's learn how one word can be used in different way. Let's get started. First word is cold, which means ठंड and ठंडा. Both are correct. I'm feeling cold. मुझे ठंड लग रही है. मुझे ठंड लग रही है. It's cold today, so I'm wearing a sweater. आज ठंड है इसलिए मैं स्वेटर पहन रही हूँ. आज ठंड है इसलिए मैं स्वेटर पहन रही हूँ. As our Hindi language is based on gender, so this sentence is suitable for female. For male person, it can be like that. आज ठंड है इसलिए मैं स्वेटर पहन रहा हूँ. The weather suddenly turned cold and I wasn't prepared for it. मौसम अचानक ठंडा हो गया और मैं इसके लिए तैयार नहीं थी. मौसम अचानक ठंडा हो गया और मैं इसके लिए तैयार नहीं थी. तैयार नहीं थी for female person. तैयार नहीं था for male person. In Hindi, word cold can be expressed in two ways, ठंड and ठंडा. ठंड is a noun which means coldness or the feeling of cold, and ठंडा is an adjective which is used to describe something. That's why in the first two sentences we used ठंड because we were talking about feeling. The next word is busy, which means व्यस्त. I'm busy right now. मैं अभी व्यस्त हूँ. मैं अभी व्यस्त हूँ. I'm busy today, so I will call you later. मैं आज व्यस्त हूँ इसलिए मैं आपको बाद में कॉल करूँगी. बाद में कॉल करूँगी for female. बाद में कॉल करूँगा for male person. I have been extremely busy all week with work and meetings. मैं पूरे हफ्ते काम और मीटिंग्स में काफ़ी व्यस्त रही. काफ़ी व्यस्त रही for female. काफ़ी व्यस्त रहा for male person. So, for male person can be say like that. मैं पूरे हफ्ते काम और मीटिंग्स में काफ़ी व्यस्त रहा. Next word is hungry, भूख. I'm hungry. मुझे भूख लगी है. मुझे भूख लगी है. I'm very hungry, so I want something to eat. मुझे बहुत भूख लगी है इसलिए मुझे कुछ खाना है. मुझे बहुत भूख लगी है इसलिए मुझे कुछ खाना है. I was so hungry that I couldn't focus on anything else. मैं इतनी भूखी थी कि किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रही थी. This sentence is for female. For male person, मैं इतना भूखा था कि किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहा था. For female person, we always use the E sound, and for male person, we use A sound. In Hindi, the word hungry can be expressed in two forms. Bhuka as the noun, and bhuka and bhuki is the adjective according to the gender. Now, the next word is tired, which means थका हुआ. I am tired. मैं थकी हुई हूँ. मैं थकी हुई हूँ. This is for female. And for male person, मैं थका हुआ हूँ. I'm tired after the long day. लंबे दिन के बाद मैं थक गई हूँ. लंबे दिन के बाद मैं थक गई हूँ. For female. For male person, लंबे दिन के बाद मैं थक गया हूँ. I'm mentally and physically tired, so I need some rest. मैं मानसिक और शारीरिक रूप से थक गई हूँ इसलिए मुझे आराम चाहिए. मैं मानसिक और शारीरिक रूप से थक गई हूँ इसलिए मुझे आराम चाहिए. मानसिक मीन्स mentally and शारीरिक मीन्स physically and tired means थकना. And same this sentence is for female and for the male person, मैं मानसिक और शारीरिक रूप से थक गया हूँ इसलिए मुझे आराम चाहिए. The next word is happy, which means खुश. I'm very happy today. मैं आज बहुत खुश हूँ. मैं आज बहुत खुश हूँ.
नेक्स्ट इज आई एम हैप्पी बिकॉज आई कंप्लीटेड माई वर्क. मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है. मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है. दिस sentences will remain same for male and for female person. I feel genuinely happy when I help others. मुझे सच में खुशी मिलती है जब मैं दूसरों की मदद करती हूँ. मुझे सच में खुशी मिलती है. This sentence will remain same for male and for female person, but the next sentence will change according to the gender. So जब मैं दूसरों की मदद करती हूँ for female और जब मैं दूसरों की मदद करता हूँ फॉर मेल पर्सन. नेक्स्ट वर्ड इज ईजी विच मीन्स आसान. दिस इज ईजी, यह आसान है. यह आसान है. दिस एक्सरसाइज इज ईजी टू अंडरस्टैंड. यह अभ्यास समझने में आसान है. यह अभ्यास समझने में आसान है. एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास. ईजी मीन्स आसान. Learning becomes easy when you practice regularly. नियमित अभ्यास करने पर सीखना आसान हो जाता है. नियमित अभ्यास करने पर सीखना आसान हो जाता है. So practice regularly means नियमित अभ्यास. Next word is difficult which means कठिन. This is difficult. यह कठिन है. यह कठिन है. This topic is difficult for beginners. यह विषय शुरुआती लोगों के लिए कठिन है. यह विषय शुरुआती लोगों के लिए कठिन है. डिफ़िकल्ट मीन्स कठिन. फॉर बिगिनर्स शुरुआती लोगों के लिए. टॉपिक मीन्स विषय. अंडरस्टैंडिंग ग्रामर रूल्स बिकम्स डिफ़िकल्ट विदाउट एग्जाम्पल्स. उदाहरणों के बिना व्याकरण के नियम समझना कठिन हो जाता है. So grammar rules means व्याकरण के नियम. Difficult कठिन. Without examples उदाहरणों के बिना. Examples means उदाहरण. Next word is late which means in Hindi देर. I'm late. मैं देर से आई हूँ. मैं देर से आई हूँ. And for male person मैं देर से आया हूँ. I got late because of traffic. Traffic की वजह से मैं देर हो गई. I apologize for being late. I was stuck in an urgent task. देर होने के लिए माफ़ कीजिए. मैं एक ज़रूरी काम में फंस गई थी. देर होने के लिए माफ़ कीजिए. मैं ज़रूरी काम में फंस गई थी. तो फंस गई थी फॉर फीमेल एंड फंस गया था फॉर मेल पर्सन. नेक्स्ट वर्ड इज़ रेडी विच मीन्स इन हिंदी तैयार. आई एम रेडी. मैं तैयार हूँ. मैं तैयार हूँ. आई एम रेडी टू स्टार्ट द क्लास. मैं क्लास शुरू करने के लिए तैयार हूँ. मैं क्लास शुरू करने के लिए तैयार हूँ. दिस सेंटेंस विल रिमेन सेम फॉर मेल एंड फीमेल. आई एम फुली रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन आफ्टर प्रैक्टिसिंग ऑल नाइट. सारी रात अभ्यास करने के बाद मैं प्रस्तुति के लिए पूरी तरह तैयार हूँ. सारी रात मीन्स ऑल नाइट. अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस. प्रस्तुति के लिए फॉर द प्रेजेंटेशन. तैयार हूँ रेडी. नेक्स्ट इज एक्साइटेड उत्साहित. आई एम एक्साइटेड. मैं उत्साहित हूँ. मैं उत्साहित हूँ. आई एम एक्साइटेड अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट. मैं नए प्रोजेक्ट के लिए उत्साहित हूँ. आई एम ट्रूली एक्साइटेड बिकॉज समथिंग अमेजिंग इज अबाउट टू हैपन. मैं सच में उत्साहित हूँ क्योंकि कुछ शानदार होने वाला है. These 3 sentences will remain same for male and for female. Thank you for watching. If you like this 1 word and 3 sentences format, please like, share and subscribe and tell me in the comment which word or topic you want next. See you in the next lesson. Thank you. Dhanyavad.